हम खड़े साथ में डाले हाथों को हाथ में कर रहे बात इस बार में अपने देश की शान में के आज परेशान है किसान वो ज़मीर जिसका मान है ज़मीर उसका दाव पे सो रहा सड़क पे इंसान है जय जवान और जय किसान के नारे सुने हजार हैं पर आज दोनों खड़े हैं सरहद पे अपने मान है। सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਟਾਈ ਦਿਆ ਜਾਏ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਜੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ GST ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬਸ। भाजी आ की है बॉयलर है देख रहे हो आप कैसा अरेंजमेंट है बढ़िया इतना बढ़िया बॉयलर है कि ठंड में गर्म पानी के लिए। कहाँ बन रहा है? यहाँ पे खाने का फूड अरेंजमेंट सब रहे हैं। तो आप लोग मतलब यहाँ आप लोग कैसे खाना मतलब ये डेली सुबह से लेकर रात तक बनता रहता है 24 आवर? मतलब कोई आप लोग कब से आए हुए हैं? 10 दिन। अगर आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से। तो आपको अब क्या लग रहा है कि अब सरकार का क्या उसमें होने वाला है, क्या डिसीजन आएगा और मतलब आप लोग कितनी प्लानिंग से आए हैं? क्योंकि हम लोग तो आज ही आए हैं तो हमें पता चला कि आप लोग 6 महीने की तैयारी करके आए हैं और लॉन्ग टाइम प्रोसेस के लिए। खाने का मेन्यू यहाँ पे रोज वैसे सेम रहता है चेंज होता रहता है तो ये सब आप लोग अपने पंजाब से सब कुछ सारी सब्जी पंजाब से लाए हुए हैं? सब पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, पंजाब से आ रही है। अच्छा तो अपने सारे भाई जो है वो आते रहते हैं जाते रहते हैं रोटेशनल बेसिस पे? आम छोड़ने आते हैं। और देखो गोभी की ट्राली आई थी इधर छोड़ के आप आज आलू गोभी बन रहा है, भी बन रहा है, 3-4 सब्जियाँ बन रही है। बढ़िया है। लंगर है बहुत लंगर है पीछे देखो। 15-20 किलोमीटर का लंबा लंगर ही है। बढ़िया ठीक है जी धन्यवाद सत श्री अकाल। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਥੋਪੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆ ਸਫੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆ ਉਹ ਸਫੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਲੂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆਲੂ ਸਫੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। जो चाहिए वही चाहिए। जो चाहिए है वो चाहिए है। और कैसे हो आप पहले तो? कब से हो यहाँ पे? अरे कल ही है, कल आए हो आप? तो आप मतलब आप करते हो फार्मिंग वगैरह या फैमिली है आपका? नहीं मतलब आपका है जैसे फार्मिंग यही करता मैं करता जी। अच्छा, हेलो आप भी करते हो? हाँ। तो अब आपका क्या इसका मतलब एक हम जानना चाह रहे हैं एक यंगस्टर का क्या वो है इस चीज़ को लेके कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? आपका ऑब्वियसली फादर पेरेंट्स फैमिली से आपका ये चीज़ चली आ रही होगी कि मतलब एक आपका फैमिली जो मतलब इतनी बड़ी चीज़ चल रही है फार्मिंग वगैरह उसको लेके एकदम से इतना बड़ा मोड़ आता है कि लॉ में कुछ इन्होंने बदल दिया कि जो चीज़ आप पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका क्या मतलब उस चीज़ को लेके नज़रिया है कि क्या गलत है क्या सही है ऐसा? हाँ देखो पता है क्या चक्कर है, ये फार्मर की बात नहीं है अकेली। ये जो हम रहते हैं ना जो सिटीज में, मैं देखो सिटी में रहता हूँ मेरी जमीन भी है ठीक है। अच्छा। लेकिन फर्क हमें भी पड़ेगा। अभी भी देखो जो 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 मक्की है जो ये 6 से लेकर 7 रुपए किलो किसान से खरीदते हैं और एक छल्ली हमें 80 रुपए की मिलती है शहर में बैठे में। अब तो इनका कब्जा बहुत कम है अभी। अगर कॉर्पोरेट का पूरा कब्जा आ गया तो 80 रुपए की छल्ली कितने में मिलेगी? हमें किसान को फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। लेकिन जो शहर में रह रहे हैं ना जो जनता है 35 रुपए किलो आटा अभी हमें मिल रहा है, तो 35 रुपए किलो किसान से थोड़ी उसको थोड़ी 35 रुपए में कुछ ज़्यादा पैसे बचते हैं। वो तो आप ये देखो यूपी का, बिहार का, एमपी का जो किसान है वो पंजाब में आके अपनी गेहूँ बेच रहा है ठीक है। तो पहले ही कर्जे के नीचे सारा किसान का ये सारा सिस्टम है ठीक है। तो किसान तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हम तो शहरों में रहने वाले हैं ना जो हम कैसे पेट पालेंगे ये चक्कर है। ये दोनों चक्कर ही है। एक तो हम किसान के बेटे हैं देखो यही भी चीज़ है, दूसरा हम शहरों में रहते हैं तो जितना हम कमाते हैं वो तो सारा इसी में चला जाएगा। तो क्या करोगे? तो ये चक्कर है मेन। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक किसान मेहनत करके एक क्वालिटी की फसल बोता है वो आखिर में जनता तक वो भी नहीं पहुंचती। हर चीज़ में अगर आपसे कोई चीज़ 10 रुपए की भी खरीदी गई और मुझे जनता को वो 35-40 रुपए की भी मिल रही है तो मैं ऐसा लगता है वो क्वालिटी नहीं थी जितनी मेहनत एक किसान ने लगाई उसको उगाने में। देखो वो क्या है कि ये क्वालिटी का जो मेजरमेंट है ना जो जैसे पेप्सिको ने पहले पंजाब में बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे आलू को लेके। पहले उन्होंने बोला कि आलू जैसे मर्जी उगाओ जो मर्जी करो हम ले लेंगे ठीक है। तो बाद में उन्होंने कड़ा रख दिया जो आलू बीच में निकल के जाएगा वो लेंगे बाकी नहीं हम लेंगे ठीक है। बाकी उन्होंने एक और कर दिया कि ये जो बीज है ये किसान किसी को दे नहीं सकता, घर में अपने रख नहीं सकता, अगर किसी को दे दिया तो उस पर केस हो जाएगा। ये बहुत कुछ कर दिया था वो कंपनियों ने जो लेज बनते हैं ना उसने बहुत सारी जमीन ठेके हवा देती है खाली। हाँ आलू तो नहीं देती। वो कहती है वो बोलते हैं कि हमारा ये स्पेशल आलू है ये आप उगाओ पर देना नहीं किसी को, अगर किसी को दिया या कुछ भी लीक हुआ तो केस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उनका वो होता है सिस्टम ठीक है। तो वो कई किसान अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर है ना, वो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर बाद में ना उनको घाटा ही पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीमेंट अगर कंपनियों के साथ हो जाएंगे ना तो किसान को समझ नहीं आएंगे। जैसे वैसे खत्म हो जाएगा, छोटा किसान तो वैसे खत्म हो जाएगा। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो कितने हम पेपर साइन करते हैं ठीक है ना। तो ये भी तो उतने ही पेपर साइन करवाएंगे ना जब हमारा एग्रीमेंट होगा। जब छोटे किसान का एग्रीमेंट होगा तो छोटा किसान कैसे पढ़ पाएगा? और एसडीएम लेवल का बंदा है जो वो इसको टैकल करेगा। एसडीएम जो किसान की जो करप्शन है ना वो शुरू होता कहाँ से होती है? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शुरू होती है। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम ये सारे जो है ना इनके एक भी साइन अगर आपने करवाने हो तो आपको पैसे चाहिए। बिना पैसों के एक साइन करवा के दिखा दो मुझे पटवारी से, तहसीलदार से, एसडीएम से या किसी से भी, बिना पैसों से ठीक है ना। जो डीसी है ना, जो डीसी होते हैं वो फिर भी थोड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो आईएएस क्लियर करके गए होते हैं, उनमें थोड़ी देशभक्ति का वो होता है ठीक है। बाकी जो छोटे जो ऑफिसर है ना जो लगा ये कहते हैं ये टैकल करेंगे वो तो किसान को वो तो रोल के रख देंगे। और सर बेसिकली जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग करता है कोई भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग का एक लॉ है कि जितना आपका इनपुट आपको कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट होगी, उसका डबल कॉस्ट आप मैन्युफैक्चर निकालता है। और वनरेबिलिटी बहुत कम होती है अगर मैं कपड़ा बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास इतनी डिमांड है, मैं उतना हो जाएगा मेरी मशीनें नहीं ख़राब होएंगी, मेरी लेबर नहीं इधर जाएगी। और फार्मिंग इज़ सच अ वनरेबल बिजनेस जिसमें कभी बारिश आ गई है तो उसकी फसल ख़राब आएगी, कभी बारिश नहीं हुई फिर
वो खराब हो जाती है, अनप्रडिक्टेबल। तो डिपेंड ही किसी और चीज़ पे करता है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का डबल भी नहीं मिल रहा, डबल का क्या, जो उसकी कॉस्ट है वो भी कई बार वो भी नहीं मिलती, तो ऑलरेडी ही इज़ इन सच अ बैड शेप, और उसके बाद अब ऐसे रूल्स ला के आप ऐसे कर रहे हो। हमारे भी देखिए, मैं मेरे फादर सरकारी नौकरी में आ गए थे, मेरे ताया जी ने नहीं की, अब मैं बिज़नेस में आ गया हूँ, आगे हूँ, और मेरे ताया जी के जो बच्चे हैं, मतलब हमारे और उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। सिर्फ वो एग्रीकल्चर में ही डील करते हैं, हम आगे निकल गए। अब ऐसे आ जाएंगे वो तो फिर दिहाड़ी वाले मजदूर ही बन जाएंगे ना। तो मतलब जो किसान, मुझे ऐसा लगता है कि खुद का मालिक है, उसको ये बांधना चाह रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, कि वो आप उसको भी अपने कब्जे में कर लो, जो पूरा देश चला रहा है। उसको अपना मजदूर बनाना चाहते हैं। हाँ। इंडिया है ना, इंडिया के अगे जो अगला मतलब टारगेट है कि इसने सोशलिस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, या इसने कैपिटलिस्ट के उस पे मॉडल पे आगे बढ़ना है। जो सोशलिस्ट अप्रोच है वो है इनकी, अपना कह दो कि जैसे चाइना है या अपना कह दो रशिया है, इनकी जो इंडिया अप्रोच ले रहा है ना, वो कैपिटलिस्ट अप्रोच ले रहा है, जिसमें कॉरपोरेट है कि वो पैसा कमाएगा, फिर वो बढ़ेगा। उसमें क्या होगा, कभी भी इकोनॉमिकली, मतलब जो वीकर सेक्शन है ना, इकोनॉमिकली कभी वो ऊपर जाएगा ही नहीं, वो और मतलब पैसे वाला और पैसे वाला बनेगा, जो गरीब है वो और गरीब ही बनेगा। जो मतलब अभी है क्या, किसान क्या है अपने आप में, जैसे अभी कहते हैं कि स्टार्टअप यहाँ पे इंडिया में चलता है कि स्टार्टअप करो, खुद एंटरप्रेन्योर बनो। अब किसान अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, बट हो क्या रहा है, इनको वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि ये लैंड कॉरपोरेट के पास हो, ये उनका एम्प्लॉई हो। जैसे अभी क्या है कि जितने दुकानदार, छोटे दुकानदार हैं, अब बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं, रिलायंस के स्टोर है। जब एक रिलायंस का स्टोर खुलता है ना, 100-200 जितने भी दुकानदार होते हैं करियाने के, वो ख़त्म है बस। जब वो ख़त्म है तो वो क्या करेंगे, इन्हीं के यहाँ पे काम करेंगे। बेसिकली सेल्स, उनका सेल्स का स्किल है, वो उसी रिलायंस मार्ट में ना इनके मैनेजर होंगे, या रिलायंस में मैनेजर लग गए। मतलब बेसिकली वो एक एंटरप्रेन्योर से एक एम्प्लॉय हो गए। मतलब अपना बॉस होता है और फिर काम पे लग जाता है। बस इन्होंने सारों को, मतलब किसानों को भी, जो दुकानदार हैं उनको भी, सभी को इन्होंने बस नौकरी पेशा बनाना है। इनको मतलब वही 8-10 जो रिलायंस में सेल्स मैनेजर वगैरह लगता है, कितना आपको क्या लगता है उसको कितना मिलता है? 25,000 30,000 से ऊपर नहीं मिलता। इन्होंने बस वो सेट कर देना, ऐश करो कि इसी में अपना गुजारा करो, बस ये मॉडल यहाँ पे आना है इंडिया में, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है कि अप्रोच आपने सोशलिस्ट अप्रोच लेनी है या आपने कैपिटलिस्ट अप्रोच लेनी है। इन्होंने बस कैपिटलिस्ट उठा लिया है। वो इसलिए उठा लिया क्योंकि वो ना नेताओं को ज़्यादा सूटेबल है। उनको आगे मतलब बजाय ये करने के कि जाके वो मतलब पूरी सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज करें या मतलब पूरा इंडिया का सिस्टम चेंज करें, वो बहुत टफ है इनके लिए। वो दो लोगों से बात करेंगे, आप 2 लोगों से बात करो, अच्छा हम फ्री हैं, आपको कोई कहने वाला नहीं, हम अपनी ऐश करते हैं। पाजी, कई लोग बाहर ये कह रहे हैं, मतलब जो यहाँ नहीं है, जिनको फार्मर प्रोडक्ट्स का कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ पार्टी हो रही है, उनको फूड मसाजर लग रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसमें क्या मतलब? ये तो हमारा कल्चर है यार। मेरी बात सुनो, देखो देखो यहाँ पे ना पहले तमिलनाडु के किसानों वगैरह ने क्या था, उन्होंने चूहे खाए थे। हाँ, उन्होंने चूहे खाए थे, ठीक है, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। एक्चुअली हमारी इंडियन मेंटालिटी पता क्या, जो रिच है या मिडिल क्लास है, जैसे हम शहरों में रहते हैं, हमारी मेंटालिटी पता क्या पड़ती है कि यार ये ना फालतू का ड्रामा करे, क्यों यार, मतलब किसान क्यों नहीं पिज़्ज़ा खा सकता है, किसान क्यों नहीं मसाज करा सकता? और मुझे ऐसा लगता है मतलब पंजाबी आदि ਜਿਹੜੀ हैगी ना एनर्जी, कि बंदा अगर दुखी भी है ना, एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। मतलब रोंदे ही नहीं सर, रोना नहीं है, रोंदे नहीं है, रोना नहीं है कभी। आप ना गांव में जाओगे ना, मतलब आप इस लेवल तक के गरीब देख लोगे कि उनका मतलब महीने का बहुत मुश्किल से चलता होगा, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होगा या मतलब और देखोगे घर चले जाओगे तो रोटी देंगे साथ में, यहाँ पे खाना की है, बचाने के लिए तो हम यहाँ पे आए यहाँ पे आए हैं, राइट। अगर ये चीज, ये कल्चर खत्म हो जाएगा, कॉर्पोरेट के पास सारा कुछ चला गया, तो ये कल्चर तो हमारा लंगरों की जो कल्चर है, जो ये ऐसे खेती बाड़ी स्टेट है, वो सारी सब खत्म हो जाएगा। और किसान क्यों ना खाए पिज़्ज़ा? बेसिकली मैदा किसान दे रहा है, सब्जियां किसान दे रहा है, टमाटर चटनी बनाने के लिए किसान दे रहा है, तो वो क्यों ना खाए? मतलब यार ये कोई ये भी नहीं है कि ये लग्जरी है, लग्जरी है, कोई लग्जरी नहीं है, ये तो मतलब बेसिक चीज है। बेसिक चीज है मसाज क्या है, एक बुजुर्ग है उसके लिए मसाज क्या है, बेसिक चीज है। मालिश को अंग्रेजी में कह दिया मसाज, तो कह रहे हैं बहुत बड़ी चीज हो पहले गई। तो मतलब गांव में अपने ही मतलब बेटे या कोई कर देता था, अब यहाँ पे मशीनें कर रही हैं बस, और क्या है। वो
ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੇਟੇ ਪਏ ਆ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। एक्चुअली है ना वही है यार, जो मतलब जो रिच है ना वो मतलब गरीब को कुछ थोड़ा सा फैसिलिटी मिल जाए ना, उसको लगता है यार झेला नहीं जाता। ये फ्री में मेरे लेवल पे कैसे आ रहा है, इसको नीचे ही रहना और सर जब कभी कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है, चाहे सीरिया में पड़ जाए, कहीं पड़ जाए, तो सबसे पहले लंगर छिकाने सरदार चले जाते हैं। अब हम खुद को हमें प्रॉब्लम है तो हम अपने लिए फैसिलिटी ना लें कोई चीज़। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर। नहीं तो ऐसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।